عزیز زینب مظفر کا آج ماتم ہے، عزیز زینب مظفر کا آج ماتم ہے، عزیز زینب حیدر کا آج ماتم ہے، علی کی لاڈل دختر کا آج ماتم ہے، غریب شاہ کی خواہر کا آج ماتم ہے، غریب شاہ کی خواہر کا آج ماتم ہے، سکون قلب خدا کے حبیب کو دیجئے، بہن کا پرسہ حسین غریب کو، بہن کا پرسہ حسین غریب کو دیجئے، دوبارہ خیر ہوئے جب کہ سید سجاد کرتے ہوئے شام لے چلے، زمان سات ہوئی آئے زینب نبی کے روضہ اقدس پہ جا کے کی فریاد، نبی کے روضہ اقدس پہ جا کے کی فریاد، شہید ہو گیا بھائی حسین ہے، مگر نہیں ہے لیلا کو چین ہے، مگر نہیں ہے لیلا کو چین ہے، رات واجد پہ پر کے ساتھ جاتی ہوں، یزید نہج کو خوف خدا دلا، خدا نے چاہا تو اسلام کو چناتی ہوں، رات
سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ سورہ دہر کی 8ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ صلوات تاریخ کی بحث اب قرآن کی بحث ہے۔ بچے بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، نڈھال ہو گئے، رسول گھر میں آئے، بچوں کی حالت دیکھی، آنکھوں میں حلقے، کمزور بچے، کہا زہرا ایسا کرو ایک منت مان لو کہ جب ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ کہہ کر چلے گئے، شہزادی نے منت مانی، بیٹے اچھے ہو گئے۔ جب بیٹے اچھے ہو گئے، غسل صحت ہو گیا تو زہرا نے پہلا روزہ رکھا۔ جب زہرا نے روزہ رکھا تو علی نے بھی روزہ رکھا۔ اب شرط میں سب شامل نہیں ہے۔ جب علی نے روزہ رکھا تو دونوں بچوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ جب دونوں بچوں نے روزہ رکھا تو اب گھر کی کنیز جو ریاضت سے اس منزل پر پہنچی تھی وہ پیچھے کیسے رہتی؟ اس نے کہا بی بی میں بھی روزے سے ہوں۔ پہلا روزہ، شام ہوئی، کچھ جو آئے روٹیاں بنی۔ کتنی روٹیاں بنی؟ 5۔ ایک روٹی جو کی ہر ایک کے حصے میں آئی، تھوڑا سا نمک، ایک روٹی۔ افطار کا وقت آیا، 5 روٹیاں سامنے رکھی گئی۔ ابھی پہلا نوالا توڑا بھی نہیں تھا کہ دروازے پر آواز آئی کہ ایک مسکین بھوکا ہے، تم سے بھیک مانگ رہا ہے۔ کہا فضا یہ میری روٹی لے جا، اس بچے کو دے دے۔ زہرا نے اپنی روٹی اٹھائی تو علی نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ مولانا مودودی کی 6 جلدوں میں تفسیر قرآن ہے، ان کی تفسیر 6 جلدیں پڑھی، کہیں پر بھی نام نہیں لیا آل محمد کا۔ یہ واحد جگہ ہے سورہ دہر جہاں لکھنا پڑا کہ یہ سورہ اسی واقعے کے بعد آیا ہے۔ سوال ہے یہ ہے موجزہ آل محمد کا۔ کہیں ذکر نہیں کیا علی، فاطمہ، حسن، حسین کا، کسی سورے میں ذکر نہیں کیا، لیکن سورہ دہر میں لکھنا پڑا کہ جب مسکین، یتیم، اسیر آیا، کہاں سے واقعہ لاتے کہ 3 دن مسلسل یہ لوگ آئے اور کسی نے بھیک نہ دی۔ خیرات کا ایک ہی واقعہ تھا، لکھنا پڑا۔ تفسیر کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھا اور یوں تو مسلمانوں کی ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ روٹی زہرا نے دی، علی نے دی، اب حسن اور حسین بھی روٹیاں دے دیں۔ اس کے آگے جملہ لکھا ہے مولانا مودودی نے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر بزرگوں نے روٹی دے دی تھی تو بچوں کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو روٹیاں دے اس لیے رہا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینی تھی، بچوں کو بتانا تھا کہ تم اس کے عادی بنو کہ غریبوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے، اور اس فکر کو تسلیم کر کے عملی طور پر 5 اور 7 سال کے بچے نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، دکھا دیا، اور صرف بچے ہی نہیں، اب کنیز نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ غور کر رہے ہیں آپ بندے تن میں کتنے لوگ ہیں؟ رسول، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، لیکن یہ جو 5 یہاں نظر آ رہے ہیں اس میں رسول نہیں ہے، اس میں ایک کا اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے فضا۔ اب غور سے سنیے گا، ایک منزل پر لا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر 5 روٹیاں پکائی گئیں، پھر یتیم آ گیا، اس نے آواز دی، فاطمہ نے روٹی اٹھا کے دے دی، پھر علی نے بھی، بچوں نے بھی، فضا نے بھی، پھر بھوکے سو گئے۔ روزے پر دوسرا روزہ،
सिक्के पहुंचे थे, और जब वो सिक्के कुदरत के पास पहुंचे तो कहा हमें कीमत मिल गई। ऐलान किया सूरह दहर में ये 5 अफराद को जन्नत हमने कीमत में दे दी। सवाल है तुम पांचों की है जन्नत। सूरह पढ़ लीजिएगा, घर जाकर बच्चों को भी पढ़ाइए तर्जुमे के साथ कि हमने जन्नत दे दी। सिले में इन 15 रोटियों के 15 रोटियां सिक्का करार पाए और जन्नत ले ली 5 ने। इन 5 में रसूल शामिल नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा। अब जन्नत की जागीर जिन 5 को मिली है उसमें एक हिस्सेदार एक कनीज है। जागीर जन्नत में जितना हिस्सा फातिमा का, उतना अली का, उतना ही बच्चों का और उतना ही हिस्सा फिजा का। कुदरत ने चाहा कि कनीज हिस्सेदार बने, हिस्सेदार बनी। कुरान ने मर्तबा बढ़ाया। आप कहेंगे कोई सबूत है? अब सूरह तहर को फिर से पढ़िएगा। पूरे सूरे में ना अली का नाम है, ना फातिमा का नाम है, ना हसन का नाम है, ना हुसैन का नाम है। पूरे सूरे में 3 बार सिर्फ फिजा का नाम लिया, कनीज का नाम लेकर बताया कि जिस घर की कनीज का नाम हम सूरे में 3 बार ले रहे हैं, 3 दिन उसने रोटियां दी हैं, तो अब उसकी शहजादी का क्या कहना, उसके आका का क्या पूछना, उसके शहजादों का क्या पूछना। पहले कनीज को तो पहचानो, पहले कनीज को तो समझो। अब जो मर्तबा बढ़ा तो अब कनीज का मर्तबा इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कनीज का मर्तबा कि ज़हरा ने दावत की रसूल की, अली ने दावत की रसूल की, हसन और हुसैन ने दावत की रसूल की। और जब 5वां रोज आया तो दर पर फिजा खड़ी थी। कहा कल मेरी तरफ से दावत है इसी घर में। और जब 5वां रोज आया और रसूल मस्जिद से निकलकर हुजरे की जानिब चले तो जिब्राइल ने आवाज दी, कहा दावत याद नहीं? कहा याद है हम जाएंगे। अब कदम उठे उस घर की जानिब। अब जो घर में आए तो कहा आज घर में खाने को नहीं, आज तो नबी बगैर बुलाए आए हैं। हैरान थे। और उधर फिजा हुजरे को बंद कर चुकी थी और मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़कर आवाज दी, माबूद तेरा हबीब मेरा मेहमान है, लाज रख, ज़हरा की कनीज हूँ। तारीख लिखती है कि तबक जन्नत से आए, तबक लिए हुए आई और आकर पेश किया और कहा दावत मेरी तरफ से है। ज़हरा ने कहा कि फिजा हमें नहीं मालूम था, लेकिन ये खाने कहाँ से आए? कहा बीवी ये आपकी कनीज का शरफ है कि जो मलक आपके घर में आता है वो मेरे लिए ये चीजें लाया। मैंने आपके बाबा की दावत की, आपने देखा कि मरियम बैतुल मुक़द्दस में उस मंजिल पर थी कि बेफसल मेवे आए। ज़हरा की कनीज ऐसी जो मरियम का मर्तबा हासिल करे। लीजिए तकरीर तमाम हो गई। रसूल का आखिरी वक्त था। फिजा उस घर में कनीज बनकर आई थी। उसकी खुद खिदमत को रसूल देख रहे थे। सबको बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, सीने से लगाया, सब कुछ बताया। हुसैन का सर सीने पर रखकर कहा मेरे लाल मैं देख रहा हूँ कि तेरा ये सर दमिश्क के दरबार में तोहफा पेश किया जा रहा है। अली को देखा, ज़हरा को देखा, सब कुछ बताया और उसके बाद एक बार फिजा पर नजर गई और कहा फिजा मेरे करीब आ। फिजा करीब आ गई। कहा कि तूने बड़ी खिदमत की है, हमारे बच्चों की बड़ी खिदमत की है। मांग अपने नबी से क्या मांगी है? 3 बातें जो भी मांगेगी तेरा नबी तुझे अता करेगा। हुक्म परवरदिगार से तेरा रसूल तुझे अता करेगा। फिजा ने कहा या रसूलल्लाह इस घर में किस चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तो मुझे मिल गया, मैं आपसे क्या मांगूं? कहा नहीं फिजा तुमने जो खिदमत की है वो हम सिरा दे कर जाएंगे। मांगो क्या मांगना चाहती हो। ये ख्याल रहे कि हुजरा कौन सा है, कौन लोग बैठे हैं, इसमें पसे पर्दा कौन लोग हैं, बाहर कौन खड़े हैं, गुफ्तगू सब सुन रहे हैं, मदीने के लोग सब सुन रहे हैं। कहा मांगो फिजा क्या मांगती हो? कहा अच्छा अगर आप कहते हैं तो पहली चीज मैं ये मांगती हूँ कि मैंने अक्सर
शहजादी को बच्चों से बातें करते सुना है, खास तौर से हुसैन से और ज़ैनब से। जब माँ और बेटे और माँ और बेटी में बात होती है तो बार बार एक लफ्ज आता है कि करबला, मैंने बीबी से सुना है कोई ऐसा वाक़या होने वाला है, दर्दनाक दास्तान है, तो हमारे घर के अलम की दास्तान है। कहा हाँ ऐसा होगा, क्या चाहती हो? कहा सिर्फ ये अपने मामू से कहिए कि मेरी उम्र इतनी बढ़ जाए कि मैं इस वाक़े तक मौजूद रहूं। कहा फिजा, हयात मेरे मामूद ने तुझे अता कर दी, दूसरी बात क्या मांगती है? कहा दूसरी बात ये मांगती हूँ कि वाक़े करबला में मेरे हाथ और पैरों में इतनी कुव्वत हो कि मैं हुसैन के बच्चों की खिदमत कर सकूं। कहा ये कुव्वत भी परवरदिगार ने अता कर दी। और तीसरी बात क्या मांगती है? कहा तीसरी बात तो मुझे हक दीजिए, जब चाहूं तो माबूद पूरा करे। कहा ये हक तुझे मिल गया, ये हक हमने तुझे दे दिया। 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ। आपको मालूम है कि फिजा की ये सारी बुलंदियां एक तरफ और चंद जुमलों में एक बुलंदी दूसरी तरफ। हसन जैसे मासूम को गोद में खिलाया, हुसैन जैसे मासूम को गोद में खिलाया, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जैसी शहजादियों को गोद में पाला। देखने चाहिए आप, अब्बास, अली अकबर, कासिम और मोहम्मद को लोरियां दी, सुल्फ़े सुलझाई, सीने पर सुलाया, खिलाया, खिदमत की, गोद में पाला, गोद के पाले मासूम बच्चे। और फिर सबसे बढ़कर ज़ैनुल आबिदीन जैसा इमाम, मोहम्मद बाक़िर जैसा इमाम फिजा की उंगली पकड़कर चलता है, इससे बढ़कर मर्तबा नहीं हो सकता। कनीज़ों में अब आप खुद सोचें कि उसने सब कुछ मांग लिया। बाहर निकली, एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। कहा फिजा, हमने गुफ्तगू सुनी, रसूल जैसा अजीम इंसान जो महबूब के इज़्न से अता करे, तुमसे बार बार कहे कि मांगो, तुमने मांगा क्या? मेरी समझ में तो ये बातें नहीं आई। कहा अच्छा, तुम होते तो क्या मांगते? ये मेरी फिक्र का आखिरी गोशा है, इसे आप महफूज रखिएगा ज़हनों में। फिजा ने कहा कि अगर तुम होते तो क्या मांगते? कुहाफा के बेटे ने कहा, हमको अगर रसूल पहला इज़्न देते तो हम ये मांगते कि हमको क़यामत तक की जिंदगी मिल जाए। फिजा ने कहा और दूसरी बात क्या मांगते? कुहाफा के बेटे ने कहा, हमको सारी दुनिया की हुकूमत मिल जाए। फिजा ने कहा और तीसरी बात क्या मांगते? कुहाफा के बेटे ने कहा, तीसरी बात ये मांगता कि मरने के बाद जन्नत मिले। फिजा ने कहा कि सुनो, ये तुम मांगते, फिजा ये नहीं मांगती, फिजा को इसकी जरूरत नहीं। तुमने कहा क़यामत तक की उम्र चाहिए, इनकी मोहब्बत में जो मर जाए हमेशा जिंदा रहता है। मैं क्यों मांगती? उनकी मोहब्बत में जो मरे वो जिंदा रहता है। तुमने कहा कि हम सारी दुनिया की हुकूमत मांगते, इस चौखट के अलावा भी दुनिया की कोई हुकूमत है? इस घर की कनीज़ी के अलावा भी कोई हुकूमत है? और तुमने कहा कि जन्नत मांगता, तो ये बताओ ज़हरा के घर के अलावा जन्नत कहीं और भी है कि मैं जन्नत मांगती? ये फिक्र की है फिजा ने। और अब वही फिजा करबला में है। अब पूरा वाक़या पढ़ लीजिए, कोई कारनामा तो नजर नहीं आएगा फिजा का, लेकिन इससे बढ़कर क्या कारनामा होगा कि दरे खेमे पर मुसलसल खड़ी है, जंग देख रही है, शहजादी बार बार एक एक लम्हे की खबर पूछती है। फिजा कभी मकतब की जानिब देखती है, कभी गोद की पाली ज़ैनब के चेहरे की जानिब नजर जाती है, और फिर गोद के पाले जा रहे हैं, गोद के पले हुए निगाहों के सामने लड़ रहे हैं, जख्मी होकर घोड़ों से गिरते हैं। फिजा पर क्या गुजरी होगी? शाम गरीबा आई तो फिजा ने अपना हक इस्तेमाल किया और बार बार इलाही में दुआ की, माबूद तेरे नबी की याद प्यासी है, फिजा तुझसे पानी तलब करती है। फरिश्ते खाना और पानी लेकर आए। फिजा ने शहजादी ज़ैनब की खिदमत में खाना और पानी लाकर रख दिया। न जाने अहले बैत ने ये पानी पिया कि नहीं, इसलिए कि अभी हुसैन की लाश पे गोरों को बन पड़ी थी। फिजा ने सख्त मसाया उठाए लेकिन साथ नहीं छोड़ा। ज़ैनब के साथ साथ बंदे आई,
शहजादी तो फिजा ने बहुत गौर से देखा था कि जब काफिला चलने लगा था तो कैद खाने की तरफ आकर आवाज दी थी। शहजादी ने मेरी बेटी सकीना घबराना वो तनहा नहीं है, वो भी बहुत जल्दी मेरे पास आएगी। मेरी बेटी इंतजार करो, वो भी सबसे पहले मेरे पास आएगी। और जब वो दिन आया कि मदीने को ज़ैनब ने छोड़ा तो एक बार शहजादी की तरफ देखा, कहा क्या फिजा को मदीने में छोड़ जाओगी? बीबी मेरा दिल मदीने में नहीं लगता, के पाले न रहे, बीबी रात दुलारे न रहे, जिन्हें गोद में सुलाया खिलाया वो न रहे, अली अकबर न रहे, हमारे अब्बास न रहे, बीबी और मोहम्मद न रहे, मैं मदीने में न रहूंगी। मेरी शहजादी बगी में सो गई, अब मैं किसके पास रहूंगी? मुझको लेकर चलो, मुझे भी साथ लेकर चलो। ज़ैनब के साथ ये एक कनीज रही, साथ नहीं छोड़ा। और जब वो दिन आया कि ज़ैनब की कब्र दमिश्क में पड़ी तो उस वक्त अपने रुखसार को कर आवाज दी कि बीबी अब फिजा को भी बुला लो, किसके रोने के लिए छोड़ा? अरे सब माँ तो रो चुकी, सारे भरे घर को फिजा रोई, बीबी मेरा भी मातम कर रही है, अब अपने पास बुला लो। अरे ज़ैनब के कदमों में फिजा की कब्र पड़ी।
जाऊंगी मैं, करबला वालों का घर तुम न कर पाऊंगी मैं, मौत से पहले इसी सदमे से मर जाऊंगी मैं। आप है मुझसे बड़ी, बतलाए कोई रास्ता, है बहन जे तुम बरादर का बहुत नजदीक है बहन जे तुम बरादर का बहुत नजदीक है। इतना सुनना था कि ज़ैनब कोई होकर बेकरार, हो के फरमाया कि ये कुलसुम मैं तुम पर निसार। इतना सुनना था कि ज़ैनब कोई होकर बेकरार, हो के फरमाया कि ये कुलसुम मैं तुम पर निसार। है मुझे बेरंग बहन हद से सिवाय इस बात का, है बहन जे तुम बरादर का बहुत नजदीक है बहन जे तुम बरादर का बहुत नजदीक है। देव क्यों बारिश आज़ादारों के दिल पर ना चले, दोनों बहनें कैद में रोई बहुत मिलकर गले। देव क्यों बारिश आज़ादारों के दिल पर ना चले, दोनों बहनें कैद में रोई बहुत मिलकर गले। हो गया जिंदान में इस बहन से महशर बपा, है बहन जे तुम बरादर का बहुत नजदीक है बहन जे तुम बरादर का बहुत नजदीक है। कैद में कुलसुम ने ज़ैनब से ये रो कर कहा, है बहन जे तुम बरादर का बहुत नजदीक है। मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। हुई है जैसे सकीना कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। यतीम हो यतीमी का दर्द समझा है, यतीम हो यतीमी का दर्द समझा है। दर्द ये सहा नहीं जाता कोई यतीम न हो,
बदनसीब हूँ बाबा, कोई यतीम ना हो मेरी तरह मेरे बाबा, कोई यतीम ना हो। कोई तो बेमोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो बेमोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो देता दिलासा, कोई यतीम ना हो मेरी तरह मेरे बाबा, कोई यतीम ना हो। मुझे यतीम का एहसास ये दिलाता है, मुझे यतीम का एहसास ये दिलाता है, मेरा बना हुआ कुर्ता कोई यतीम ना हो मेरी तरह मेरे बाबा, कोई यतीम ना हो। नींद कानों से खेची है वादियाँ मेरी, नींद कानों से खेची है वादियाँ मेरी, बहुलुआब है चेहरा, कोई यतीम ना हो मेरी तरह मेरे बाबा, कोई यतीम ना हो। खुदा ना होगा फिर बाप बेटी से, खुदा ना होगा फिर बाप बेटी से, उठे न बाप का साया, कोई यतीम ना हो मेरी तरह मेरे बाबा, कोई यतीम ना हो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام علیکم